Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, Lord Rishabhadev's teachings, Text 1. Rishabha uvacha nayam deho dehabhajam niloke kashtan kaman arhate vidbhujam ye tapo divyam putrakayena sattvam shuddhetyasmad brahma saukyam tanantam. Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lord Rishabhadev told his sons, "My dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever." Purport. In this verse, Lord Rishabhadev tells his sons about the importance of human life. The word Dehbhak refers to anyone who accepts a material body. But the living entity who is awarded the human form must act differently from animals. Animals like dogs and hogs enjoy sense gratification by eating stool. After undergoing severe hardships all day, human beings are trying to enjoy themselves at night by eating, drinking, having sex and sleeping. At the same time, they have to properly defend themselves. However, this is not human civilization. Human life means voluntarily practicing suffering for the advancement of spiritual life. There is of course suffering in the lives of animals and plants, which are suffering due to their past misdeeds. However, human beings should voluntarily accept suffering in the form of austerities and penances in order to attain the divine life. After attaining the divine life, one can enjoy happiness eternally. After all, every living entity is trying to enjoy happiness, but as long as one is engaged in the material body, he has to suffer different kinds of misery. A higher sense is present in the human form. We should act according to superior advice in order to attain eternal happiness and go back to Godhead. It is significant in this verse that the government and the natural guardian, the father, should educate subordinates and raise them to Krishna consciousness. Devoid of Krishna consciousness, every living being suffers in this cycle of birth and death perpetually. To relieve them from this bondage and enable them to become blissful and happy, Bhakti Yoga should be taught. A foolish civilization neglects to teach people how to rise to the platform of Bhakti Yoga. Without Krishna consciousness, a person is no better than a hog or a dog. The instructions of Rishabhadev are very essential at the present moment. People are being educated and trained to work very hard for sense gratification, and there is no sublime aim in life. A man travels to earn his livelihood, leaving home early in the morning, catching a local train, and being packed in a compartment. He has to stand for an hour or two in order to reach his place of business. Then again he takes a bus to get to the office. At the office he works hard from 9 to 5. Then he takes 2 or 3 hours to return home. After eating he has sex and goes to sleep. For all this hardship, his only happiness is a little sex. Yan maithunadi grihamedi sukham hituchham. Rishabhadev clearly states that human life is not meant for this kind of existence, which is enjoyed even by dogs and hogs. Indeed, dogs and hogs do not have to work so hard for sex. A human being should try to live in a different way and should not try to imitate dogs and hogs. The alternative is mentioned. Human life is meant for tapasya, austerity and penance. By tapasya, one can get out of the material clutches. When one is situated in Krishna consciousness, devotional service, his happiness is guaranteed eternally. By taking to Bhakti Yoga, devotional service, one's existence is purified. The living entity is seeking happiness life after life, but he can make a solution to all his problems simply by practicing Bhakti Yoga.
then he immediately becomes eligible to return home back to Godhead. As confirmed in Bhagavad Gita 4.9, Janma karma cha me divyam evam yo vetti tattatah tyaktva deham punarjanman naiti mameti so Arjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Om Jnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Gurav Shitaf Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitamtam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. ऋषभदेव भगवान के एक अवतार हैं जो अपने 100 पुत्रों को वानप्रस्थ में जाने से पहले उपदेश दे रहे हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार विशेष रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वे 50 साल की उम्र के बाद में अपनी सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियों को छोड़ करके आध्यात्मिक प्रगति की जिम्मेदारी को ग्रहण करते हैं। पूर्ण रूपेण केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही कार्य करते हैं। इसलिए ऋषभदेव अभी राज सिंहासन जो है वो अपने बड़े पुत्र भरत महाराज को सौंप करके जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने पुत्रों को। तो ये एक आदर्श पिता हैं जो अपने पुत्र को, जो उनका कर्तव्य है पिता के नाते वो निभा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गुरु या पिता या माता नहीं बनना चाहिए यदि वो अपने आश्रितों को भवबंधन से बाहर नहीं निकाल सके, उसकी शिक्षा नहीं दे सके, उसके लिए प्रशिक्षित नहीं कर सके। तो ऋषभदेव उनके 100 पुत्र थे, लेकिन वो 100 पुत्र काम वासना के आधार पर जनित नहीं हुए थे, बल्कि वो उन सभी को 100 आत्माओं को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए उनको जनित किए थे। इसलिए यहाँ पर वो इस प्रकार से अपने पुत्रों को बता रहे हैं। नायम देह देह भाजाम नृलोके, कि ये जो मनुष्य देह है, देह भाजाम नृलोके, नृलोक में बहुत सारे देह हैं, सभी जानवरों की शरीर भी हैं, सभी जीवों के यहाँ पर शरीर है भौतिक जगत में, लेकिन नृलोके ये मनुष्य शरीर जिसको मिला है, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम, ये उसको विडभुजाम, विडभुजाम मतलब जो मल खाता है यानी कि सुअर, उसके समान कष्टमय जीवन जीने के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं बना है, ये मनुष्य जीवन उसके लिए नहीं बना है। तो किसके लिए बना है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत, दिव्य तपस्या के लिए बना है, जिससे कि क्या हो सके, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, हम अपने को शुद्ध कर सकें। ऐसी तपस्या करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, जिससे क्या होगा, यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जिससे कभी ना समाप्त होने वाला ब्रह्म सुख हम प्राप्त कर पाएंगे, जो हमारी सभी की परम इच्छा है, सभी जीव के स्वाभाविक इच्छा है, नित्य सुख की स्थिति को प्राप्त होना।
तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो आधुनिक समाज जो अब जिसमें हम रह रहे हैं वो मिसडायरेक्टेड है, उसकी आलोचना कर रहे हैं। पूरी तरह से वो गलत दिशा में चल रहा है, क्योंकि वो लोग सूअर की तरह से दिन भर कठिन मेहनत करना और रात को मैथुन सुख का सहारा लेकर के दिन भर की झुंझलाहट को मिटाना, यही उनका जीवन का सार है सामान्यतः सभी लोगों का। तो उनमें और सूअर में क्या अंतर हुआ? शक्ल अलग अलग है लेकिन काम तो एक जैसा ही है, चेतना लगभग एक जैसी ही है। तो ये शास्त्र के वचन हैं, विड भुजाम। ये शास्त्र में ऐसे स्पष्ट शब्दों में जो लोग केवल इंद्रिय भोग के लिए कठिन कार्य करते हैं उनकी भर्त्सना की गई है, सूअर के साथ उनकी तुलना की गई है। तो ये बड़ा क्रांतिकारी विचार है। पूरी मानव सभ्यता को ये आवश्यकता है सुनने की, विशेष रूप से जो समाज के लीडर्स हैं उनके लिए, क्योंकि वो इस प्रकार से शिक्षा लेकर के पूरे समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं। और हमें आवश्यकता है, ऑफ कोर्स हम भी किसी न किसी स्तर पे कुछ ना कुछ लीडरशिप रोल लेंगे समाज में। कोई पिता के रूप में लेगा या तो कोई प्रचारक के रूप में लेगा, हो सकता है कोई राजनीतिक स्तर पे भी ले। समय बताएगा। लेकिन जिस स्तर पे भी हम लीडरशिप रोल लेंगे तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसी प्रकार से जो हमारे पे आश्रित हैं, जो हमसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, हम उनको इस प्रकार से मार्गदर्शन दे सकें। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को जानवरों से अलग प्रकार से जीवन जीना चाहिए। स्टार्किंग डिफरेंस होना चाहिए। क्या डिफरेंस होना चाहिए? कि जानवर जो हैं वो केवल इंद्रिय भोग के लिए जीते हैं, उनका जीवन ही केवल इंद्रिय भोग के लिए, आहार निद्रा भय मैथुनम, दैट्स देयर लाइफ। लेकिन मनुष्य का जीवन का बेसिस आहार निद्रा भय मैथुन नहीं होना चाहिए। जानवर भी आहार निद्रा भय मैथुन के लिए बहुत कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन मनुष्य उनसे भी ज़्यादा कठिन मेहनत करता है आज। ये प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ग्राफिक डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रहे हैं महानगरों का, और ऐसी ही सभ्यता आज धीरे धीरे सभी जगह बढ़ती जा रही है। सुबह जल्दी उठ कर के लोग जाते हैं। क्यों प्रशांत? बॉम्बे में अगर आप सुबह बॉम्बे में लोकल ट्रेन में जाएंगे 5-6 बजे, 4 o'clock इट स्टार्ट्स, क्योंकि 2-2 घंटा ट्रैवलिंग, 2-2.5 घंटा ट्रैवलिंग करना होता है, तो 5-6 बजे से पैक हो जाता है। और फिर रात को आप देखेंगे तो 11 बजे तक, 10 बजे तक कम से कम बहुत भीड़ मिलेगी आपको। सो ये एग्जेजरेशन नहीं है, रियली इस प्रकार की सिविलाइजेशन आज हो रही है सब जगह में, कि जानवरों से भी ज़्यादा हम कठिन कष्ट से भरे हुए जीवन जी रहे हैं, कष्टपूर्ण कार्य कर रहे हैं। केवल किस लिए? उद्देश्य क्या है? आहार निद्रा भय और मैथुन, बस ये 4 ही चीज़ें हैं। तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो ट्रेन्स के अंदर कंपार्टमेंट, पैक्ड इन कंपार्टमेंट, तो बहुत कष्ट में है ये ट्रैवलिंग करना। ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हो के प्राइवेट हो, प्राइवेट में भी कष्टपूर्ण है। आप कार लेके जाएंगे, अपनी बाइक लेके जाएंगे तो सारा पोल्यूशन एंड दैट होल हॉर्न्स, सभी आवाज़ और पूरा ट्रैफिक जैम, सब पूरा कष्टप्रद है। सुबह से शुरू होता है, हर दिन यही काम, हर दिन सुबह से वो कष्टपूर्ण जीवन। और फिर वर्क प्लेस में जाकर के फिर वहाँ पर कष्टपूर्ण जीवन है। वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक अननेसेसरी हमने सिविलाइजेशन बनाई, जिसमें कि बहुत उग्र कर्म करते हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स बनानी हैं, और बहुत हैवी कंपटीशन है इंद्रिय भोग करने के लिए।
इसलिए उस कंपटीशन में रहने के लिए बहुत हमेशा नया कुछ इन्वेंट करते रहना है। हर एक कंपनी में एक बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। मार्केट में टिके रहने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहना है। ऊपर से प्रेशर है बॉस का कि कुछ नया करो, कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ करो, और ज़्यादा कस्टमर्स लाओ, टारगेट्स हैं। तो इस तरह से बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ सामान्यतया आज लोग जी रहे हैं। तो जानवर भी वास्तव में इतना स्ट्रेसफुल लाइफ तो नहीं जीते इंद्रिय भोग के लिए जितना आज मनुष्य जी रहा है। लेकिन वास्तव में मनुष्य का जीवन तो ऐसा स्ट्रेसफुल लाइफ जीने के लिए है ही नहीं। तो पहले हम ऐसी सिविलाइजेशन बनाते हैं जिसमें स्ट्रेस क्रिएट हो और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स देते हैं। लेकिन आप स्ट्रेस देने वाला सभ्यता ही ख़त्म करो तो फिर ये कोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो ऐसे ही हो गया कि पहले सिर पे हथौड़ा मारो और फिर एस्पिरिन दो। आप अगर एनालाइज करेंगे तो हमारे आज की सभ्यता में सब ऐसे ही हैं। डी एडिक्शन, एक तरफ से सभी को इंद्रिय भोग करने के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जब इंद्रिय भोग करना है तो फिर ठीक है, जो बेस्ट इंद्रिय भोग है वो करना चाहते हैं, तो इलिसिट सेक्स, ड्रग्स, इससे ज़्यादा तो इंद्रियों को टिटलेट करने वाला और कोई चीज़ नहीं है। तो फिर लोग इसमें जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यार डी एडिक्शन करो अभी। तो कॉन्ट्रडिक्टरी है समाज के अंदर। एक तरफ इंद्रिय भोग को जितना हो हमें इंद्रिय भोग करना है, लेकिन फिर उसके अंदर एक प्रकार का इंद्रिय भोग नहीं करना है जिसमें कि ड्रग्स हैं कुछ, ये तो एंटी मोरल हो जाएगा, इलिसिट सेक्स। लेकिन जब इंद्रिय भोग जीवन का लक्ष्य होता है तो कब तक आदमी मोरालिटी को मेंटेन करेगा? जानवरों की कोई मोरालिटी होती है क्या? जानवरों की मोरालिटी एक्चुअली होती है प्रकृति के द्वारा विवशता से, लेकिन अन्यथा उनकी अपनी समझ से कोई मोरालिटी नहीं होती। वो कोई मोरल प्रिंसिपल्स जान करके फॉलो नहीं कर सकते। प्रकृति के द्वारा जो नियम है उसके अंतर्गत तो रहते हैं। लेकिन मनुष्य है, उसको तो अधिक बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो वो प्रकृति के नियमों को भी विरुद्ध जाने का कुछ हद तक प्रयास कर सकता है जो जानवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो ज़्यादा इमोरल हो सकता है जानवरों से भी। इसलिए हम देखते हैं कि जानवर, कोई भी जानवर, बहुत रेयर है जो जानवर अपने बच्चे को मारते हैं। सांप अपने बच्चे को खाता है, ऐसा है। लेकिन बाकी कोई जानवर देखो, आप गाय देखो, अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो माता अपने बच्चे को एबॉर्शन के द्वारा मरवाती है। ऐसा और कहीं नहीं है। एबॉर्शन इज़ ओनली इन ह्यूमन सोसाइटी, कि माता जो है वो अपने बच्चे को गर्भ के अंदर मरवा देती है। सो इतना गिर सकता है मनुष्य, क्योंकि वो जो विवेक बुद्धि है उसका उल्टी दिशा में वो उपयोग करता है। तो इसलिए जब इंद्रिय भोग जीवन का लक्ष्य होता है तो हम यही अपेक्षा कर सकते हैं कि मनुष्य जानवर के भी नीचे स्तर पे गिर जाएगा। वो अपनी विवेक बुद्धि का गलत उपयोग करेगा और निकृष्ट तरीके से इंद्रिय भोग करने के लिए, और ये हम देख रहे हैं। आज जो है आदमी कितने कितने प्रकार के घृणित अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल एंजॉयमेंट में लग रहे हैं, कोई उसकी सीमा ही नहीं है। लेस्बियंस, होमोसेक्सुअल्स, मतलब हेट्रोसेक्सुअल इलिसिट सेक्स छोड़ो, जो जानवर भी जिस प्रकार से नहीं करते हैं उस प्रकार के सारे आर्टिफिशियल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, अननेचुरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो हैं वो आज मनुष्य कर रहे हैं। इतना उनका स्तर नीचे गिर गया है। फिर उसी प्रकार से वॉयलेंस, कोई जानवर इतनी वॉयलेंस नहीं करता है जितना कि मनुष्य करता है। जानवर एक वॉयलेंस करेगा अपनी लिमिट के अंदर, अपने खाने के लिए केवल करेगा, लेकिन एक मनुष्य जो है वो आज हवस की वजह से, ग्रीड की वजह से पूरे बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब्स बना रहे हैं। कोई जानवर इतना बड़े स्तर पे तबाही नहीं मचाते हैं जितना मनुष्य करता है। तो जानवरों में जब मनुष्य बनता है तो खूंखार से खूंखार जानवर बनता है, वेरी वेरी वायलेंट एनिमल। सो ये आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, क्योंकि उसका केंद्र इंद्रिय भोग है, इसलिए वो मनुष्यों को खूंखार जानवर बना रही है। दैट्स ऑल, दिस इज़ द एसेंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। प्रभुपाद बोलते थे पॉलिश्ड कैट्स एंड एनिमल्स। बाहर से पॉलिश्ड हैं पर अंदर से तो एक्चुअली दे आर इवन वर्स देन कैट्स एंड डॉग्स। हाँ, सो क्या फिर हमें नहीं सोचना चाहिए कि
क्यों हम ऐसी सिविलाइजेशन की नकल करें? ये लोग जो जानवरों की नकल कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के पीछे क्यों चलें? हमें जानवर क्यों बनना है? वाई वी शुड imitate, why we should follow this society which is just making us animals, violent, ferocious animals. इसके विपरीत कैसा होना चाहिए मनुष्य का जीवन? सुख शांति में जीवन जिसका लक्ष्य हो आध्यात्मिक प्रगति। ये है भगवान ने जिस प्रकार से मनुष्यों के लिए रचना की है, ये ऐसी है। जानवरों को इंद्रिय भोग के लिए हमेशा से कष्टप्रद जीवन जीना पड़ता है ना, कष्टान कामान। लेकिन मनुष्यों के लिए जो उनका आहार निद्रा भय मैथुन जो सामान्य आवश्यकताएं हैं शरीर की, जानवरों की भी हैं मनुष्यों की भी हैं, लेकिन मनुष्य उनको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बिना अननेसेसरी कंपटीशन के और बिना कष्ट के कार्यों से किए बिना आसानी से वो अपनी ये आधारभूत आवश्यकताएं जो है आहार निद्रा भय मैथुन उनको पूरा कर सकते हैं। तो आहार, शरीर को टिकाने के लिए कुछ आहार चाहिए, तो उसके लिए जानवरों से भी ज़्यादा आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो जो विवेक बुद्धि है उसको हम उपयोग कर सकते हैं। और जैसे सुअर है तो सुअर का खाना कहाँ है? उसका तो मल खाना है उसको, तो सो ही हैज़ टू बी इन द सीवेज, है ना। लेकिन मनुष्यों के लिए भगवान ने सात्विक आहार बनाए हैं, उसकी व्यवस्था की है ना। एग्रीकल्चर, कृषि के द्वारा आसानी से एक सिविलाइज्ड व्यक्ति जो है सत्वगुण के अंदर रह सकता है। कुछ ज़मीन में कुछ बीज डालना है, पानी देना है, अपने आप भगवान की व्यवस्था है कि एक बीज से कई 100 बीज उत्पन्न होते हैं, जिससे हम अपने को मेंटेन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाय, बैल इत्यादि जो पशु हैं उनके लिए भी साथ साथ खाना उत्पन्न होता है घास के रूप में। जो हम नहीं खाते हैं वो गाय खाती है। गेहूँ है तो गेहूं की जो बाल लगती है तो उसमें जो बीज है वो आदमी खाता है, और जो बाकी का है पूरा वो गाय बैल के लिए है। तो उनका भरण पोषण भी होता है और मनुष्य का भी होता है। तो अगर आप एनालाइज करें तो आहार के लिए ये आधुनिक सभ्यता शुरू होने से पहले सभी जगह इसी प्रकार से खेती पर आश्रित अर्थव्यवस्था थी। खेती और गोरक्षा के ऊपर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था थी सामान्यतः पूरे जगत में, क्योंकि बेस्ट तरीका है ये अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मतलब ईटिंग, अनाज चाहिए, है ना, कुछ रहने के लिए, कुछ मकान के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों के लिए कृषि और गोरक्षा वो जो बड़ा सरल तरीका है और बहुत ही सात्विक है। उसमें आपको कोई जानवरों को मारना नहीं है, जो कि पाप है, किसी को पीड़ा नहीं देनी है, और कष्ट में कार्य नहीं है। थोड़ा घंटे काम करना है और वो कार्य भी बहुत सात्विक है, शरीर को हष्टपुष्ट रखने वाला है, चिंताजनक नहीं है, चिंता को जनित करने वाला नहीं है, पीसफुल, क्योंकि उसमें कोई अननेसेसरी आर्टिफिशियल कंपटीशन नहीं है। लेकिन आजकल केवल रोटी कपड़े मकान के लिए बहुत कंपटीशन है। कितने सालों का पढ़ाई, कितने सारे एग्जाम्स, कितने सारे एग्जाम देते हैं हम लोग एक जीवन में, काउंट करें कभी हाउ मेनी टेस्ट्स। हाँ, और वो जो टेस्ट हम देते हैं इतने सारे, उसमें से हम लोग अंततः यूज़ करते हैं वो बहुत कम शिक्षा यूज़ करते हैं। क्यों? कभी आप सोचो उसको, क्यों हमने, कैसे ये हुआ कि ये अननेचुरल है? क्योंकि पूरी सिविलाइजेशन बनाई गई है जिसमें कि आर्टिफिशियल चीज़ों को उत्पन्न करना है। बेसिक नेसेसिटी से हम संतुष्ट नहीं हैं दान आसुरी मनुष्य, इसीलिए दैट्स द ओनली रीज़न, देयर इज़ नो अदर रीज़न। क्योंकि अगर हम अनाज रोटी कपड़ा मकान से संतुष्ट होंगे तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
वाई डू वी नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन? रोटी कपड़े मकान के लिए उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसकी ज़रूरत तो कब पड़ी, जब हमें ऑटोमोबाइल्स बनाने थे, हमें बैलगाड़ी में चलना नहीं, हमें पैदल नहीं चलना है, हमें तो कार में घूमना है, सैर सपाटा करना है, तब ज़रूरत पड़ी। फिर जब हमें ऐसे एक के बाद एक के बाद एक नेसेसिटीज़ हम लोग क्रिएट करते गए। अभी सब दूर दूर रहने लगे, ऑटोमोबाइल्स आ गए, तो सब लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो फिर कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी, फिर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री डेवलप हुई। एक के बाद एक आवश्यकताएं जो हम क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल नेसेसिटीज़, और फिर इनको पूरा करने के लिए और कोई नई इंडस्ट्रीज़ शुरू हुई, है ना। पूरा सबर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, क्योंकि शहरों में बहुत भीड़ है, तो फिर अभी सबर्बन एरिया में लोग जाके रहते हैं, फिर वहाँ से वहाँ तक के लिए कमीशन के लिए फिर वो लोकल ट्रेन सिस्टम। हाँ, अभी आप देखिए वो शहरों में भी हर जगह पे मेट्रो, भोपाल में भी मेट्रो। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे इतने सारे लोग रह रहे हैं और उन सब लोगों को कम्यूट करना है, तो उसके लिए रोड्स, देन रोड्स के ऊपर बीच में क्या है वो BDTS, फिर BDTS के ऊपर फिर मेट्रो, पता नहीं ऊपर कहाँ तक जाएंगे। लेकिन कोई भी सिस्टम बनाते हैं, उसमें कुछ सालों के बाद में फिर अगेन इट बिकम्स इनसफिशिएंट, देन अगेन न्यू थिंग, नई समस्याएं क्रिएट करके वो बनाई हुई समस्याओं को, क्रिएटेड समस्याओं को सुलझाने में ही हमारा पूरी शक्ति चली जा रही है मनुष्य समाज की, है ना। और हम इसे सुख मानते हैं, माया के वश में जो कष्ट है, जो कष्ट मिल रहा है उसको सुख मानते हैं। जैसे सुअर है, वो भी बड़ा सोचता है आई एम वेरी हैप्पी। इवन इंद्र भी जब उनको सुअर की योनि मिल गई तो उनको भी लगा कि ये बड़ा सुख में है। ब्रह्मा को उनके सारे पत्नी बच्चों को सबको मारना पड़ा, तब जाकर के उनके अकल में आया हाँ ठीक है कुछ गड़बड़ है। विचार करने की बात है कि ये कष्टमय जीवन जीने के लिए नहीं है। इंडस्ट्रीज़ में पूरा हेलिश, प्रभुपाद बोलते हैं इंडस्ट्रीज आर हेल, नॉइस एंड एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, एवरीथिंग, एवरीवेयर इट इज़ हेल, हेल फॉर द वर्कर्स, हेल फॉर एवरीबडी एल्स। उसकी जगह सरलता से आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि, गोरक्षा, गाय के साथ में जीवन जीना बहुत सात्विक है अपने आप में। गाय की सेवा करना अपने आप में बहुत सात्विक है। उससे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये अपने आप शमित होता है, क्योंकि वो सात्विक है। ये आसुरी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, रजोगुण, तमोगुण। तो आज का जो लाइफस्टाइल है वो रजोगुण तमोगुण को कल्टीवेट करने वाला है, क्योंकि ग्रीड पे आधारित है ना, इसलिए वो रजोगुण तमोगुण को कल्टीवेट करता है। वो बना इस प्रकार से है। लेकिन जो मनुष्यों के लिए जो सिंपल लाइफ जो भगवान ने निर्दिष्ट की है वो सतोगुण को जनित करती है। और सतोगुण में फिर आसानी से भगवान के बारे में चिंतन होता है, कोई विचार आते हैं कि हाँ कौन है, परम सत्ता कौन है, जानना चाहिए, समझ में आता है कि भगवान हैं, और फिर भगवान की भक्ति करने के लिए इच्छा होती है। लेकिन रजोगुण तमोगुण में इससे उल्टा होता है। इसलिए वो जो है आज का जो आधुनिक समाज है वो बिल्कुल क्रिमिनल, ह्यूमन लाइफ को क्रिमिनली डिस्ट्रॉय करने के लिए है। इसके लिए नहीं है, वो कष्टपूर्ण जीवन के लिए नहीं है, बहुत आसानी से शांतिमय जीवन जीने के लिए है। ऑफ कोर्स इस भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी रहेंगी, उसके लिए तो वैकुंठ जाना है, भगवत धाम जाना है, उनसे बाहर निकलने के लिए। लेकिन कम से कम उससे ज़्यादा तो हम समस्याएं क्रिएट नहीं करें, और उन समस्याओं के समाधान के लिए भक्ति करनी है, भगवान की शरण लेनी है, क्योंकि वो भी हमने आर्टिफिशियली अपने ऊपर थोप ली है भोग करने की इच्छा से। लेकिन अभी और फर्दर उसको लोभवश अनावश्यक चीज़ों को के पीछे भागने से हम इसको और अधिक बढ़ा रहे हैं अपने इस कष्ट को। तो आवश्यकता है हम समझें कि वी कैन लिव वेरी पीसफुली, देयर इज़ नो नीड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज, वी कैन लिव इन ए वे दैट वी आर नॉट स्ट्रेस्ड अननेसेसरली,
लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा ग्रीड ख़त्म होना चाहिए। संतोष एक मनुष्य का गुण है जो बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फाइड, जो भी आधारभूत आवश्यकता है उसमें संतुष्ट होना, तभी ये संभव है कि हम अपना ये सादा जीवन जो है वो जी सकेंगे। तो कष्टान कामन, तो आहार, फिर निद्रा। सो निद्रा के लिए क्या, दिमाग में अगर शांति है तो फिर आराम से निद्रा, सोने के लिए आराम से हम सो सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़े बड़े मैंशंस की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े बंगलों की ज़रूरत नहीं है। बड़े बंगले होते हैं लेकिन चिंताएं इतनी होती हैं कि उनको अच्छे से नींद नहीं आती है। तो अगर मन में शांति होगी और मेहनत करेंगे तो आराम से नींद आएगी। और नींद के लिए एक घर जो है वो आसानी से बनाया सकता है। उसके लिए इतना बड़े बड़े एंडेवर्स की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, दैन सीवेज सिस्टम, दैन सो मैनी सिस्टम्स, ये सब इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो बनाने पड़ रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि शहर में सब बहुत ज़्यादा एक जगह कॉन्ग्लोमरेट हो गए हैं, इसलिए स्काई स्केपर है, एक के ऊपर एक चढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि सब एक साथ भीड़ में आ गए। अदरवाइज सब लोग ज़मीन पे रह सकते हैं, लेकिन अभी टंग के रहना पड़ता है ऊपर 100th फ्लोर। और वहाँ से जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो सीधा डाइव। सो क्या ज़रूरत है, कितना एंडेवर है, आप सोचिए स्काई स्केपर बिल्डिंग बनाने के लिए। आज शहरों में एक व्यक्ति को अपना एक 1 BHK 2 BHK बनाने के लिए इट नीड्स crore rupees। In Bombay you need at least 2 BHK 1 crore at least, more than that। 1 BHK at least minimum 90,000। हाँ। So उतना पैसा कमाने के लिए आपको कितने साल लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर, और वहाँ गाँव में और वहाँ पर खाली पड़ी है ज़मीनें, यहाँ पर एक स्क्वायर फीट का कितना रेट है, बॉम्बे में इट विल बी लाइक आई डोंट नो 10,000 20,000 रुपीज़ समथिंग, इतना कॉस्टली है। और गांव में इजीली, अभी हम उड़ीसा की बात कर रहे थे, वहाँ 1 acre इज़ स्टिल 80,000 70,000 1 लाख रुपये 1 acre। वाटर इज़ देयर, एग्रीकल्चर इज़ देयर। लेकिन क्यों यहाँ इतना महंगा है? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो क्या ज़रूरत है उसको वहाँ पर क्या सेलिंग? क्यों? क्योंकि हमें वो इंडस्ट्रीज़ में काम करना है, जॉब करना है। अभी हमारी एजुकेशन ऐसी है कि हमको जॉब के बिना तो हम अपना पेट भी नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि हमको खेतों से, हमारे, आप देखो, आप सबके, हमारे पिताजी दादाजी ज़्यादा लोग के आपके किसान निकलेंगे। हमारी सबकी अगर आप फॉलो करेंगे तो पिताजी दादाजी वो सब खेती में ही थे। एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन एग्रीकल्चर। लेकिन आज की जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खेती में कोई नहीं है ना। कितना बड़ा चेंज हो रहा है, हैव यू थॉट अबाउट इट? सब लोग, हम लोग सब खेती छोड़ करके शहरों में आ रहे हैं जॉब्स के लिए। ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि खाने के लिए तो चाहे हम जॉब करें कुछ भी करें, खाना तो वहीं से उगेगा, ज़मीन से उगेगा खाना। तो अगर सभी लोग इस प्रकार से आएंगे तो फिर वहाँ खेती कौन करेगा? वो फिर मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी बड़ी मशीनों से उसको करवाएंगे, और उससे इतनी सारी समस्याएं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, सो मैनी प्रॉब्लम्स। और इतना सारी पढ़ाई करके, मेहनत करके ज़्यादातर लोग शहरों में क्या कर पा रहे हैं? केवल 2 जून की रोटी उनको मिल पा रही है, एक रहने के लिए एक छोटा सा क्रम्बल्ड हाउस मिल पा रहा है। अल्टीमेटली दैट्स व्हाट दे गेट। तो वो तो, उससे अच्छा तो हम आसानी से गांव में रह के खेती करके एक बड़ा घर, खुला घर जिसमें खुला प्रकाश और हवा हो, है ना, और बहुत पौष्टिक आहार हम लोग ले सकते थे, विदाउट अंडरगोइंग दिस बिग साइकिल, स्टडिंग फॉर सो मैनी ईयर्स, सो मैनी कॉम्पिटिशन, सो मैनी फ्रस्ट्रेशन, सो मैनी फेलियर्स, है ना। तो ये क्या मूर्खतापूर्ण कार्य है, लेकिन ये मूर्ख असुरों को ये समझ में नहीं आता है। सो दैट इज़ समथिंग टू बी वेरी डीपली कंटेम्पलेटेड। भय, आहार, निद्रा, भय। तो भय सामान्य है,
अपना रक्षण करना सामान्य है, लेकिन आज रक्षण करने को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अभी मान लीजिए हम लोग जो हैं वो कुछ सिंपल औजारों से अपनी रक्षा कर रहे हैं, है ना, कुछ तलवार है या कुछ समथिंग लाइक दैट। अब उसी की जगह हम परमाणु बम बनाने लगे, इधर से परमाणु बम उधर से परमाणु बम, बात तो वहीं आके टिक गई दोबारा से। चाहे 2 तलवारें हैं चाहे 2 परमाणु बम हैं, काउंटर एक्शन हो गया, लेकिन कितना कॉम्प्लिकेट हो गया। जस्ट कंपेयर हाथ से लड़ाई विद द मिसाइल्स और विद दिस ऑल मॉडर्न एम्यूनिशन। फ़ायदा क्या हुआ? वो तो है तो वही, केवल अपने को बचाव करने के लिए। इधर से हमने इसको टेक्नोलॉजिकल एडवांस किया, उधर से उसने भी टेक्नोलॉजी एडवांस कर दिया, बात तो वहीं आके टिक गई फिर से। लेकिन पहले क्या था कि केवल जो क्षत्रिय हैं वो लड़ते थे, प्रजा उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी, वो अधार्मिक माना जाता था प्रजा को मारना। लेकिन आज तो प्रजा को मारते हैं ना, बॉम्ब गिराते हैं तो किसके ऊपर गिराते हैं? पूरे शहर के शहरों को नष्ट करते हैं ना। सो सच ए लो क्लास मेंटेलिटी, है ना। सो इसको हमने पूरा कॉम्प्लिकेट बना दिया, डिफेंस सिस्टम को पूरा कॉम्प्लिकेट। आज कोई भी देश का जो ज़्यादातर जो जीडीपी है, ग्रॉस नेशनल जीएनपी जो है, वो ज़्यादातर मेजर पोर्शन जो है वो डिफेंस में जाता है। यानी हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका मेजर पोर्शन है डिफेंस के लिए, बहुत बड़ा पोर्शन उसका। केवल एक आर्टिफिशियली एक बड़ी मिलिट्री और बड़ी उसकी टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड एम्यूनिशन को मेंटेन करने के लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं। अगर दोनों तरफ से सिंप्लीफाई हो जाए तो दोनों तरफ के लोगों को अननेसेसरी वो पे नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो मैडनेस। मैथुन, यस, सेक्स डिज़ायर इज देयर, तो वैदिक संस्कृति में उसको विवाह संस्कार में नियोजित किया गया है। लेकिन आज तो विवाह जो है वो लोगों के, तो विवाह तो बहुत ट्रबलसम हो गया आज मैरिज लाइफ। इसलिए वेस्ट में तो इतना ट्रबलसम हो गया कि लोग मैरिज ही नहीं करते हैं, और इंडिया में भी धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखिए ज़्यादा मैरिजेज जो हैं, दे आर द रिलेशनशिप्स आर कंस्ट्रेंड, इट एंड्स अप इन डाइवोर्स, कोर्ट केसेस, सो मैनी प्रॉब्लम्स। क्योंकि पूरी केंद्र इंद्रिय भोग है ना, तो कुत्ते बिल्ली में थोड़ा शादियाँ होती हैं, वहाँ थोड़ा कोई अच्छे से परिवार बनते हैं। लेकिन वहाँ पर भी कोर्ट केस तो नहीं करते हैं कम से कम। दैट इज़ सीन इन ह्यूमन सोसाइटी कि एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस करना है, उसको मारना है। वो एनिमल सोसाइटी में नहीं, इसलिए वही वहाँ पर भी वो और जानवर से भी खराब बदतर जीवन की तरफ चले जा रहे हैं। कितने सारे केसेस हम देखते हैं जिसमें शादी होती है, उसके बाद में फिर डाइवोर्स, और डाइवोर्स के बाद में फिर वो इतने सारे पैसे देने पड़ते हैं कि वो बहुत सारा लोन लेना पड़ता है, रेस्ट ऑफ लाइफ वो लोन देने में चला जाती है। क्या फ़ायदा हुआ? सो वहाँ भी सुख नहीं है, वो दंपत्ति जीवन में भी सुख नहीं रह गया अभी। फैमिली लाइफ भी इसे हॉरर की तरह से हो गया अभी, शादी विवाह करना भी फॉर मैनी पीपल इट एंड्स अप लाइक दैट। शादी के समय में बैंड बाजे बजते हैं, फिर बाद में उनके बैंड बाजे बजाए, पहले सब खुश होते हैं, हाँ, दे डोंट नो कि पीछे क्या होने वाला है अभी। माता पिता भी हाँ बच्चों की शादी कराते हैं हम लोग, और जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं उनको लिए वो दुख करते हैं, अरे ब्रह्मचारी बन गया, मैं छोड़ के चला गया। लेकिन शादी होती है तो पत्नी की वजह से लड़का छोड़ के आता है, तब क्या होगा? ऐसा बहुत होता है। अगर आप एनालाइज करो, ये पूरी सोसाइटी जो है, हर चीज़ इनकी पागलपन की है, हर चीज़ पागलपन है, उसका कोई सेंस ही नहीं निकलता है, जस्ट पॉइंटलेस। पहले तो बेसिस ही है कि हमारा ये शरीर नश्वर है, इस शरीर के लिए जो भी करेंगे वो इट्स पॉइंटलेस, इट्स यूजलेस टू वर्क फॉर इट, अनलेस वी आर वर्किंग फॉर अ सिचुएशन जिसमें हमको नित्य जीवन मिले, सब यूजलेस ही है अल्टीमेटली। और उसके ऊपर और बड़ा पागलपन है आधुनिकता, आधुनिक समाज। श्री प्रभुपाद कहते हैं फीवर है 100 डिग्री, हम उसको आज आधुनिक सभ्यता में उसको 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री बढ़ा रहे हैं फीवर। और सो ये शिक्षा दे रहे हैं ऋषभ देव कि आप जो है ऐसे
एक्चुअली ऋषभ देव की शिक्षा तो है कि विट बुझाम, ये सुअर की तरह से मत जियो, लेकिन आज कौन सी शिक्षा देंगे? आज तो ये सुअर से भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं। अभी तो कंपैरिजन कर रहे हैं सुअर के, सुअर जैसा मत बनो। आज कौन सा कंपैरिजन करेंगे हम? सुअर को भी हमने मात दे दी, अभी कौन सा कंपैरिजन करेंगे? सुअर को शिक्षा देनी पड़ेगी, तुम आदमी ऐसे मत बनो। गधे गधे को ही मात कर दिया, गधे तुम आदमी। सो डिग्रेडेड, सो डिग्रेडेड। सो ऋषभ देव कह रहे हैं कि तपो दिव्यम, जीवन जो है वो दिव्य तपस्या के लिए, कष्ट लेने के लिए, वॉलंटरी कष्ट लेने के लिए। किस प्रकार के कष्ट? भगवान की सेवा में कष्ट। भगवान की सेवा में कोई कष्ट वास्तव में नहीं है, लेकिन हमारे अनर्थ हैं उसको निकालने में हमें कष्ट होता है, दैट्स इट। आर्टिफिशियल जो हमारी चेतना बन गई है उसको वापस अपनी स्वाभाविक चेतना में लाने के लिए कुछ कष्ट है, वो दिव्य कष्ट है, दिव्य तपस्या है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना। तो सोना जो है वो अननेचुरल है। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार से सोना नहीं होता है। सोना मतलब इग्नोरेंस, यू फॉरगेट। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार से निद्रा नहीं है, लेकिन हम लोग कंडीशन है इसलिए हमको सोना पड़ता है, इसलिए अभी हमें उठने में कष्ट लगता है। लेकिन वास्तव में हमेशा से हम उठे ही रहने चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी अवेक इन द सेंस वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ अवर सर्विस टू कृष्ण एंड दैट विल गिव अस ब्लिस, है ना। लेकिन हम लोग दूर निकल गए हैं भगवान से, इसलिए हमें अभी सोना पड़ता है, इसलिए सुबह उठने में कष्ट नहीं होते, क्योंकि हम लोग तमोगुण में हैं, इसलिए वी आर हैबिचुएटेड टू स्लीप। इसलिए हम देखते हैं जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत हैं, सन्यासी गोस्वामीगण, तो वो निद्रा पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। सो दे डोंट नीड टू सफ़र दिस स्लीप। स्लीपिंग इज सफरिंग। लेकिन जो तमोगुण में उनको तो वही आनंद लगता है, बट इट्स अ सफरिंग। स्लीपिंग इज अ सफरिंग बिकॉज दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू सर्व कृष्णा, सो इट्स अ सफरिंग। सो उसी प्रकार से भगवान की सेवा करना अभी हमें कुछ कष्टप्रद लग सकता है, क्योंकि हमारा उसमें टेस्ट नहीं है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, भगवान के बारे में सुनना है, तो हमारी रुचि उसमें अभी नहीं कवर्ड हो गई है, इसलिए हमें वो कष्टप्रद लग सकता है ना। तो वो तो हमारी समस्या की वजह से वो कष्टप्रद लगता है, इसलिए उसको दिव्य तपस्या कहा है। क्योंकि वो जो कष्ट लेना है वो हमें हमारी स्वाभाविक स्थिति में हस्तांतरित कर देगी, इसलिए उसको दिव्य तपस्या कहा है। जो भौतिक जगत में कष्ट वैसे भी अपने आप आता ही है, इंद्रिय भोग के रास्ते में तो कष्ट आते हैं, वो दिव्य कष्ट नहीं है, वो कष्ट है और उसका परिणाम क्या होगा? और कष्ट। लेकिन दिव्य तपस्या है, उसका वो कष्ट किस प्रकार का है, उसका परिणाम होगा दिव्य सुख। ये अंतर है दिव्य तपस्या में और कर्म फल के अनुसार मिलने वाले कष्टों में। तो अभी हमें डिसाइड करना है हमें कौन से कष्ट लेने हैं। एक कष्ट जो अपने आप विवश होकर के सहने पड़ेंगे कर्म फल के अनुसार, और दूसरा है हम जानबूझ करके ऐसे कष्ट लें जो अपने को सत्ता को शुद्ध करने के लिए। दैट डिसीजन वी हैव टू मेक। अगर हम अपनी सत्ता को अपने को शुद्ध करने वाले कष्ट लेंगे, यानी कि भगवान की सेवा में जो भी कष्ट आ रहे हैं उनको लेंगे, तो फिर दिव्य सुख की प्राप्ति होगी, नित्य सुख की प्राप्ति होगी। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, भगवान के नित्य सेवक बन पाएंगे। और अगर हम वो कष्ट नहीं लेंगे तो कर्म फल के कष्ट विवश होकर के हमें सहते ही जाने पड़ेंगे जन्म जन्मांतर। सो अभी हमें विचार करना है अपनी बुद्धि से कि हमें क्या चाहिए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने पूरा चॉकआउट किया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को कैसे होना चाहिए, कैसे सब रहना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये फार्म कम्युनिटीज़ का विज़न दिया, जिसमें ये सब आधारभूत आवश्यकताएं बड़ी आसानी से पूरी हो सकती हैं और बिना लोभ के हम जीना और भक्तों के संग में भक्ति करना। इट्स वेरी फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट। ये प्रैक्टिकली ये सारी इंस्ट्रक्शंस उस प्रकार से आसानी से फॉलो हो सकती हैं उस प्रकार के एनवायरनमेंट में। कष्टान कामान, वहाँ पर कष्ट करने के लिए अननेसेसरी आर्टिफिशियल कष्ट का जीवन का कोई वहाँ पर स्कोप ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो रात को सब लोग सोना ही है, और लोभ नहीं है इसलिए वो पैसा 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 नहीं है, बस अनाज जितना आवश्यक है उतने में संतुष्ट होना है।
जो लोग भी वहाँ गए हैं, जहाँ फार्म कम्युनिटीज़ में जाते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। शहर के जीवन से जब वहाँ आते हैं तो उनके साधु संग मिलता है, इतना सारा, हमेशा जहाँ देखते हैं वहाँ भक्त मिलते हैं। और हर दिन प्रातःकाल सब मंगला आरती करना, गृहस्थ भक्तों, अभी तो आपके लिए मंगला आरती आप लोग आ पा रहे हैं, हर रोज़ सुबह आते हैं, सब लोग सब ऐसे बैठ रहे हैं। जब आपके जॉब शुरू हो जाएंगे तब आप देखना कि आपको कितना ऐसे बैठने को मिलता है। See those who are outside in the job, they cannot sit like that peacefully. हमेशा टेंशन, अभी ये मैसेज आया, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, ऑलवेज टेंशन 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 टेंशन। रात को देर से सोना पड़ता है। आजकल जॉब्स 9, 10, 8, 9 बजे तक लोग आते हैं, सोते हैं। प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, एवरीवेयर। गवर्नमेंट जॉब में बहुत प्रेशर है, आज टेंशन है सब जगह। सो देर से सोते हैं, फिर उठने में सुबह उठ नहीं पाते हैं, अच्छे से जप नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी आपकी लग्जरी है, स्पिरिचुअल लग्जरी की लाइफ है अभी आपकी बेस पर जो आप जी रहे हैं। एक्चुअली आप लोग देखना, अभी आप लोग जो आसानी से मिल रहा है आपको, बाद में कितना मुश्किल हो जाएगा ये सब चीज़ें मिलना। ऐसे भक्तों का संग नहीं मिल पाएगा आसानी से, और ये पढ़ने का समय, सुनने का समय, जप करने का समय बड़ा मुश्किल है बाहर के जीवन में। ऐसा क्योंकि उन लोगों का जीवन उन्होंने डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया है ना, उनको तो भक्ति नहीं करनी है, उनको तो केवल पैसा 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 पैसा। सो दे हैव डिज़ाइन द सोसाइटी लाइक दैट। अगर आप चाहें भी उस सोसाइटी में रहकर के हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए भाई, दे वोंट अलाउ यू, देन यू आर ए मिसफिट। तुमको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मुझको तो चाहिए, देन यू फाइंड एम्प्लॉयमेंट समवेयर एल्स। आई वॉन्ट समवन हु इज़ वेरी एम्बिशियस, इसको खुद खूब पैसा कमाना है, क्योंकि तभी तो मेरे को भी पैसा कमा के देगा। बॉस थिंग्स लाइक दैट, करेक्ट। कोई कंपनी में आप जाके बॉस को बोलें मुझे 10 घंटा काम नहीं करना है, मुझे 5 घंटा काम करना है, मेरी पगार आप आधी दे दो, बॉस क्या बोलेगा? मेरे पास 12 घंटे करने वाले, काम करने वाले लोग हैं, तो मैं 5 घंटा रख के तुमको क्या करूँगा? हाँ, बिकॉज जो मैं तुमको पगार देता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट मिलता है ना। तो फिर तुमको कम रख करके मैं एक आदमी को कम कर क्या मेरे को फ़ायदा होगा? सो बेटर यू गो समवेयर। सो ये जो आधुनिक जिस गति से घूम रहा है पैसे के पीछे, उसी गति से मोर और लेस कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसकी अपनी गति है, उसका अपना सिस्टम है सेट। सो crushed, everybody is forced to be crushed। लेकिन बाकी लोगों को तो क्या, उनको तो अच्छा लगता है क्रश होना, बिकॉज दैट्स देयर गोल ऑफ लाइफ। दे आर लाइक हॉग्स एंड डॉग्स, व्हाट दे विल डू। लेकिन भक्तों को सोचना चाहिए, बिकॉज दे विल रियली फील क्रश्ड। अगर उनके अंदर वो समझ रहे हैं भक्ति को, दे विल फील अननेचुरल कि कहाँ आ गए हम लोग। आई यूज्ड टू फील लाइक दैट। जब ये इंटर्नशिप करने के टाइम में वो थोड़ा सा झलक देखने को मिलती है कि जॉब्स कैसे होते हैं, क्या होता है जॉब का मतलब। और क्योंकि बाकी समय में तो उससे पहले ज़्यादातर पढ़ाई में हम इन्वॉल्व रहते हैं अपनी, लेकिन जब इंटर्नशिप शुरू होती है तो इट्स लाइक जॉब। सो क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते तो काफ़ी समय पढ़ाई में निकल गया, अभी वो समय पढ़ाई में नहीं है तो उनके साथ में गपशप करने में जाएगा, उनके साथ बात करने में। और उन लोगों की जो चेतना है, इट्स जस्ट सो लो क्लास, हॉक्स एंड डॉग्स, एग्जैक्टली लाइक दैट। उससे ज़्यादा चेतना नहीं है लोगों की। केवल उनके डिस्कशन किस बारे में होते हैं? स्त्री के बारे में होते हैं, मूवीज़, शेयर मार्केट्स, दैट्स देयर टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन। पॉलिटिक्स, क्या चल रहा है, क्या है, दैट्स ऑल। सो वेरी सिकनिंग एक्सपीरियंस। सो श्रील प्रभुपाद हैज़ गिवन अस दैट। तो उसके बारे में ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। एक महाराज हैं, भक्ति राघव स्वामी महाराज, वो कंबोडिया में, आई थिंक कंबोडिया समवेयर, बाली इंडोनेशिया में वो यूथ प्रीचिंग करते थे। तो ऐसे एक हॉस्टल था, उन्होंने एक बॉयज़ हॉस्टल बनाया था। आई थिंक देयर वर गर्ल्स आल्सो इन सम नियर बाय हॉस्टल समथिंग। तो फिर वो लोग ग्रेजुएशन होने के बाद में फिर टाइम केम टू
go back to their places and like that different jobs. लेकिन वो लोग का सबका आपस में बहुत अच्छा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप डेवलप हो गए थे. सो दे ऑल फेल्ट वेरी बैड कि अभी हम इतने साल यहाँ 2-4 साल सब साथ में रहे, इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, अभी हमें सबको अपने अपने अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, वहाँ कोई हमें साधु संग नहीं मिलेगा, क्या करेंगे. सो देन महाराज सजेस्टेड व्हाई डोंट वी मेक आवर ओन कम्युनिटी. तो वो लोग फिर वहाँ पर कुछ somehow they managed कुछ ज़मीन लेके, देन फार्म कम्युनिटी कंसेप्ट पूरी तरह से नहीं था. दे वर डूइंग जॉब, वहाँ रहते सब साथ में थे, जॉब करते थे, ऐसे कुछ शुरुआत की थी. फिर बाद में कुछ लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए, कुछ खेती भी करने लगे, लाइक दैट डिफरेंट थिंग्स. सो समथिंग वी कैन ऑल्सो थिंक लाइक दैट, आवर ओन कम्युनिटी ऑफ दोज हु आर साधु संग में रहना चाहते हैं, भक्तों के संग में रहना चाहते हैं. क्रांतिकारी है, लेकिन अच्छे की तरफ है वो क्रांति, टुवर्ड्स कृष्णा, इसलिए इट्स वेरी प्लेजेंट. ओके, वी विल स्टॉप हियर. हरे कृष्णा. कोई प्रश्न? No question? Take some time. एक ये है कि जो हम जॉब करते हैं या कहीं बिजनेस करेंगे, उससे जो लक्ष्मी जनरेट होगा उसको देकर भी हम सेवा कर सकते हैं. या कैसे भी हम सेवा तो कर ही सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट. वो तो किसी भी परिस्थिति में हम भगवान की सेवा किसी न किसी स्तर पे कर सकते हैं. बट दैट्स, वो तो बहुत ही एक ठीक है, और इससे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं. केवल पैसे देने से ही तो वो तो सर्वश्रेष्ठ स्तर नहीं है ना. हमारा पूरा समय ऐसे ही कार्य करने में जाना चाहिए जो भगवान को संतुष्ट करने वाला है. शराब का ठेका खोल के हम फिर भगवान, ये लीजिए, शराब का ठेका क्यों खोला? ज़्यादा पैसा मिलेगा इसलिए खोला. सो कृष्णा विल नॉट बी प्लीज्ड कि अच्छा आपने ज़्यादा पैसा मुझे देने, क्योंकि कृष्णा अल्टीमेट डजंट नीड मनी इन एसेंस, ही नीड्स यू, ही नीड्स योर लव. लव मीन्स फर्स्ट टू डू व्हाट कृष्णा वांट्स. तो ठीक है, विवशता है तो दूसरी बात है, बट अन्यथा तो वी शुड लिव इन अ वे दैट कृष्णा वांट्स अस टू लिव. हाँ, विवशता है तो ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कम से कम पैसा दे रहा हूँ, जो कमा रहा हूँ कम से कम वो दे रहा हूँ. दैट्स बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन. विवशता है बैड बार्गेन. वी आर, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन में फंसे हुए हैं, दैट्स अ बैड बार्गेन. उसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, नहीं निकल पा रहे हैं, ओके, लेट्स एटलीस्ट जो कमा रहे हैं लेट्स यूज इट इन सर्विस ऑफ कृष्णा. दैट्स लाइक कर्म योगा, वेरी लो लेवल. लेकिन हियरिंग एंड चैंटिंग एंड लिविंग विद डिवोटीज एंड टुगेदर सर्विंग कृष्णा, मिशन ऑफ कृष्णा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड भक्ति. सो दैट कम्स एट अ लोअर लेवल. केवल अपना कुछ कर्म कर रहे हैं, बस फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं. 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं ना अलग अलग स्तर, तो वो है, ठीक है, जिस स्तर पे भी हम कर सकें दैट इज़ एक्सेप्टेबल. इट इज़ नॉट कि सबसे टॉप पे करो नहीं तो कुछ भी मत करो, ऐसा नहीं है. जो भी हम कर सकें दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू कृष्णा. बट वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम ज़्यादा अच्छे से और कैसे कर सकें, हाउ टू सर्व बेटर एंड बेटर. महाराज युधिष्ठिर के समय पर हर जगह वर्णाश्रम है, जिससे पूरी तरह से भौतिक रूप से समृद्ध है. लेकिन अगर आज हम फार्म कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं तो हम तो पूरी लंका में बीच में एक जगह है, पूरा हर जगह असुरों का समाज है, और उसमें बीच में छोटा सा एक कम्युनिटी है. तो वो तो बाकी समाज का पूरा प्रेशर बहुत आएगा. तो अगर हम प्रॉपर संकीर्तन यज्ञ भी करते हैं तो क्या एक गारंटी है कि हम भौतिक रूप से भी पीसफुल रहेंगे और फिर हम भक्ति में प्रगति करेंगे? किस प्रकार के प्रेशर आएंगे बाहर के लोगों से?
जैसे अभी मान लीजिए वहाँ रोड बनना है, जैसे अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो रोड बन गया या कुछ लोगों का आना जाना बढ़ गया और फिर गवर्नमेंट ने बोला कि आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग CBSE ICSE से, इस तरह से अगर विरोध आना चालू होगा। हाँ, तो विरोध तो हमेशा इस जगत में रहेंगे आपके भक्ति के लिए। वो तो आप अगर शहर में रहेंगे तो भी आप कुछ भी भक्ति करेंगे उसके लिए भी हमेशा विरोध रहेगा उनका। तो आप क्यों आप चैंटिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं आप जॉब पे, ज़्यादा आओ, अभी हमने अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, अभी वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए हैं, अभी आप आओ। सो दैट इज़ ऑलवेज, दैट टसल इज़ ऑलवेज गोइंग टू रिमेन अगेंस्ट दैम, दैट टसल इज़ ऑलवेज गोइंग टू रिमेन। तो वो तो लड़ाई रहनी है। तो बट वी शुड कीप ऑन फाइटिंग विद देम, वी कैन नॉट। उसका तो उपाय यही है कि उनकी बात मान लो फिर, तो उससे तो क्या फ़ायदा होगा। सो बेटर टू फाइट। तो लेकिन वो तो लड़ाई जो है वो कम से कम हम उसको बहुत पीछे धकेल रहे हैं। हम पहले अपनी एक व्यवस्था वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें तो बहुत ये रेयर है वहाँ से रोड निकलना है, इट्स नॉट वेरी सो कॉमन। लेकिन अगर हम इस आधुनिक उन्हीं की ही सोसाइटी में, उन्हीं के सिस्टम में रह रहे हैं और फिर दूसरे जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ तो टसल बहुत एक्यूट होगी। एवरी डे एवरी मोमेंट देयर बी टसल। तो कंपेयरिंग, ये तो बहुत रेयर सिचुएशन है वो जो टसल्स हैं। बट दिस इज़ लाइक, उनको तो आपने फिर या तो आप पूरा सरेंडर कर दो कि हमें भक्ति करनी नहीं है, आपकी तरह से रहना है, और उसमें उनके सिस्टम में पूरा उनके पार्ट रह करके आपको भक्ति करनी है, तो वो तो टसल और एक्यूट हो जाएगी ना। तो उससे तो अच्छा ही है। अभी गांव में भी तो वो कंसेप्ट चलेगा, अभी स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट ला रहे हैं, फिर आगे स्मार्ट गांव का कंसेप्ट ले आएंगे। सो इट्स बेटर स्टिल टू कीप ऑन ट्राइंग जितना हो सके फ्रॉम द रिमोट साइड। नहीं तो आ जाएगा तो उसके क्या फिर, उसका विकल्प क्या है फिर? ओके तो ठीक है, आ जाएगा वहाँ पर भी, गांव में आए तो हम क्या करें फिर? एक है शहरों में रहो, उन जैसे ही रहो, उनके बहुत जाओ भक्ति, दैट्स वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? शहर में रह के भक्ति करो। बट उससे तो फिर भी अच्छा है ना, वो आप स्मार्ट सिटी में और जहाँ ऑलरेडी हो गया है, जहाँ पूरी तरह से उनका फोकस है, वहीं रह करके आप कर रहे हैं, तो वहाँ तो ऑलरेडी दे हैव डेवलप्ड, दे हैव गॉन इन दैट डायरेक्शन। एंड उसी के बीच में आप रह करेंगे तो और ज़्यादा परेशानी होगी ना, कंपेयर टू जितना उनसे दूर जाएंगे। वहाँ आने में उनको और समय लगेगा, और संभावना है कि जब तक वहाँ पहुँचे तब तक उनकी पूरी सभ्यता ही ढह जाए। दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी बाय द टाइम दे विल रीच, क्योंकि ये तो सोसाइटी तो है डूम्ड। इनका पेट्रोल कब ख़त्म हो जाए, इनका ये पानी कब ख़त्म हो जाए, सो दैट्स ऑल्सो देयर। तो जितना हो सके हम अपने को इनसे दूर रखेंगे, एंड बाई नेचर्स अरेंजमेंट नेचुरली दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन तो ढहने वाली है। तो इसलिए और दूसरा है कि हम लोग उस प्रकार से प्रयास करते रहेंगे तो एक ऑप्शन है ना पूरे बड़े समाज, आधुनिक समाज के नेताओं के पास, कि जब उनकी अकल ठिकाने आएगी कि अरे हम ये कहाँ गए, क्या हो रहा है, इससे इसका विकल्प क्या है, तो हम उनको विकल्प दे पाएंगे ना, फिर दिखा पाएंगे। लेकिन हम सोच लें अरे तो इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो छोड़ो, कुछ करेंगे नहीं, तो फिर आशा कहाँ रह जाएगी, फिर होप कहाँ रह जाएगी फिर? तो एक होप रखने के लिए तो एक जितना हो सके उसको रेजिस्ट करना ही चाहिए ना। हमको तो परोपकार करना है ना। सो वी हैव टू ऑलवेज गो टू द एक्सट्रीम, रेजिस्ट जितना भी हो सके उतना करना है, जब तक हो सके तब तक करना है। और उस करने में आवर वी विल बी डेफिनेटली एट ए बेटर पोजीशन कंपेयर टू हम उन्हीं के ही सोसाइटी में बिल्कुल बीच में रहें और उन्हीं के ही सिस्टम में पूरा रहें, उससे तो डेफिनेटली अच्छी सिचुएशन रहेगी। बहुत हद तक हम उन पर डिपेंडेंट नहीं हैं बहुत चीज़ों के लिए। पैसे की अगर जरूरत नहीं है, हमारा लोभ नहीं है, हम अपनी मैनी वेज स्टिल वी आर मच बेटर देन लिविंग द सिटीज़। आज सिटी में तो टैक्स 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 टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स 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 टैक्स, ठीक है हम कमाते ही नहीं हैं, टैक्स क्या करोगे, देयर इज नो मनी, वी आर सो बहुत कम टैक्स है ना कंपेरेटिवली बाई सिस्टम ऑल्सो। इस दिशा में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कोई सोच रहे हैं कि मुझे इस तरह से इस समाज में नहीं रहना है, भक्तों के समाज में रहना है, तो उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? Already steps have been taken here. So fortunately by mercy of disciples of Srila Prabhupada,
कुछ ऐसे ऑलरेडी एफर्ट चल रहे हैं, सो वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट एंड देन आइदर वी कैन गो देयर, गेट ट्रेन्ड और जॉइन देम, और आफ्टर गेटिंग ट्रेन्ड वी कैन टुगेदर स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, वी कैन टेक लैंड। ज़्यादा कुछ में दिक्कत नहीं है, वी हैव टू टेक अ लैंड एंड वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग, ग्रोइंग आवर फूड एंड क्लोथ, दैट्स इट, सिंपल। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है वो, बस यही, ये माइंड में वो इच्छा, दृढ़ संकल्प ही मुश्किल है, उसके आगे के स्टेप्स बहुत आसान हैं रिलेटिवली। ये सिटी दिमाग में से वो निकालना वही सबसे मुश्किल चीज़ है, उसके लिए वो दृढ़ संकल्प होना कि हमें अलग, हमें इस दिशा में नहीं जाना है, वही, उसके बाद के स्टेप्स आसान हैं। अभी भी ज़मीन है, अभी मैं बता रहा हूँ उड़ीसा में 80,000 रुपये, आपकी तो एक साल की फ़ीस कितनी है? हाउ मच डू यू पे? हाँ 1 लाख। कितने साल? 4 साल। 4 साल ये पढ़ाई की जगह आप अगर आपके पिताजी 4 एकड़ ज़मीन ले लेते तो आपका और आपके आने वाली जनरेशन्स का सबका गुजारा हो जाता। करेक्ट। सो दैट्स प्रैक्टिकल, दैट्स प्रैक्टिकल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।